तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और उसका क्या इम्पैक्ट निफ्टी पे पड़ने वाला है। और जो हमने कहा था वही हुआ। निफ्टी उस दिन से ही इट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग लोअर और कंसोलिडेट करना शुरू हो गया। क्या अब निफ्टी वापस टर्न करने वाला है? क्या बैंक निफ्टी वापस टर्न करने वाला है? जब भी हम अपना एनालिसिस शुरू करें तो पहले ग्लोबल मार्केट हमेशा देखें। तो लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट्स हैपनिंग इन द ग्लोबल मार्केट। ग्लोबली कमोडिटीज़ में क्या हो रहा है? गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, करेंसी यूएसडी आईएनआर कैसे चल रहा है, सब देखते हैं। This video is for educational purposes only and does not constitute investment advice. डाउ जोन्स का मंथली चार्ट है, तो देखिए ये बुलिश कैंडल्स ही बन रही हैं यहाँ पे। RSI is above 60 of the monthly long term. Dow Jones weekly chart, again, strongly bullish candle was formed here, and it's a little side here, and RSI is above 60, so no problem here also in the medium term for Dow Jones. And if you look at the daily chart, so though it made a strongly bearish candle और फिर ये थोड़ा sideways यहाँ पे अभी चल रहा है, but the RSI is still above 60. So if it takes support on 60 and turns from here, then overall Dow Jones is in a good state even in the short term. This is the S&P chart. इसका monthly chart आप देखें, bullish candles बन रही हैं, RSI above 60. It's similar to Dow, even though weekly is above 60 with good candles here. So you look at the price structure and you look at the RSI to confirm it also. So that makes it doubly sure that it's absolutely fine how you read the price structure. Similarly, आप ये डेली का भी देखें तो दैट्स ऑल्सो लाइक बुलिश। सी ये स्ट्रांगली बुलिश कैंडल बनाया है, ये थोड़ा सा साइड है बट दैट्स ओके, कंसोलिडेट तो करेगा ही व्हेन इट गोज अप, एंड इट्स RSI इज अबव 60, सो नो प्रॉब्लम हियर ऑल्सो इन S&P. इफ़ यू लुक एट द NASDAQ चार्ट, so NASDAQ में RSI is above 60 and it's consolidating a little, but above 60 consolidate कर रहा है, so no problem in the long term. Similarly, the weekly chart, even though it came down, it took support on this blue line that you see is the 20 EMA. वहाँ पे support लेके again it formed a strongly bullish candle and it's going up, and RSI is above 60, so the medium term chart is also good. And if you look at the daily, so it was taking resistance at 60, and if it breaks above this, then again it's a good thing. It's in sync with your weekly and monthly charts. Similarly, you can look at the European markets also, DAX, Euro stocks and all. I don't have so much time to take you through everything, but this is just for you to understand globally markets कैसे read करते हैं. So overall US market, which is the main one, is in a good state and is bullish also. सिमिलरली आपने जैसे अमेरिकन US मार्केट देखी, यूरोपियन मार्केट्स अगर देखी, और फिर एशियन मार्केट्स भी अगर देखी, और जैसे ये एक एग्जांपल है, ये निक्केई का है जापान की, एंड लुक ये बुलिश कैंडल्स बना रहा है एंड इट्स कंसोलिडेटिंग एंड ऑल अबव 60 RSI इन द मंथली थिंग, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल. वीकली आप देखें फिर ये नीचे आया था, और यहाँ पे इसने फिर से 20 EMA पे सपोर्ट लिया, विच शोज हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ द 20 EMA सपोर्ट. और यहाँ से ये वीकली के नीचे भी आया था RSI 60 के, नाउ इज़ बैक अप, सो नो प्रॉब्लम इवन इन Nikkei नाउ, even from a medium term perspective in the weekly chart. And if you look at the daily, it's at RSI 60, it could take a little bit resistance, consolidate a little bit more, or it could go up. And if it goes up, then anyway, it's all in sync again. So no problem even with Nikkei. Similarly, you could look at other markets as well. Kospi, Hang Seng, China and all if you want. तो आपने जैसे US मार्केट देखी, डाउ वगैरह देखा, फिर इफ़ यू वांट टू सी गोल्ड हाउ इट्स वर्किंग आउट, जैसे ये गोल्ड ने काफ़ी रैली दी थी एंड अभी इट्स कंसोलिडेटिंग अ लिटिल, एंड यहाँ पे देखिए ये फिर से ये स्ट्रांगली बुलिश कैंडल बना रहा है. मंथली चार्ट है ये, अभी मंथ इज़ नॉट फिनिश्ड बट इट्स RSI above 60, so long term no problem with gold. If you look at the weekly chart,
तो वीकली इट केम डाउन, इट इवन वेंट बिलो द 20 EMA, और फिर ये around RSI 40 of the weekly it took support, and it's going up and it's gone above the 20 EMA again. So which is a good sign with good bullish candles. अब ये resistance यहाँ पे थोड़ा सा weekly resistance है medium term, तो यहाँ consolidate करता है और it turns down. We have to see. If you look at the daily chart, then daily also जैसे नीचे आया and it formed a strong bullish candle and RSI above 60. So the monthly, which is the long term chart, is pulling the daily up, and it's possible कि ऐसे करके even gold it could pull up. But of course price confirmation होगा तब weekly का पता चलेगा. But as far as this is concerned, your short term and the long term is good. Best scenario would be when the medium term also turns up and RSI goes above 60. If you look at silver, silver again जैसे नीचे आया, it didn't even come down to 20 EMA in the monthly chart, और यहाँ से ये support अगर लेके वापस turn कर सकता है, and as long as RSI is above 60, the long term view is absolutely perfect. If you look at the medium term chart, the weekly chart of silver, then that is consolidating because it went below your 20 EMA also, and then it's consolidating between 60 and 40. And now it's slowly going above the 20 EMA, which is a good sign. And even if you look at the daily chart, the short term chart also, even though it came down a little, might take support at the RSI 60, and from here it could turn, and it's already formed a strongly bullish candle. So because again, like I said, like in the gold chart, the monthly long term is strong, so that could take the daily up, and hopefully that would also take the weekly up. So actually no problem with gold and silver, either they're consolidating or bullish, but not negative. This is the crude oil chart. Crude oil करके ही सारा कुछ इंडिया में भी हो रहा है, and worldwide the problems that are happening. But if you look at the monthly chart, it formed a strongly bearish candle here, और उसके बाद से it's not been able to form a strongly bullish candle, और ये उसी के around चल रहा है and it's consolidating. So which is a good sign for us. So long term is little in the bearish zone right now. And if you look at the weekly chart also came down. In fact, went below the 20 EMA, and the RSI 60 also went down. और अभी ये 20 EMA के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है वीकली चार्ट पे. सो बीवेयर, थोड़ा कॉशन मतलब देख के चले, बट बिकॉज RSI इज स्टिल अराउंड the resistance zone, it's around 59.8, 59.9, and when it goes above 60 and closes there, and then continues, that's when crude oil could be a problem, and that means crude oil is increasing, and therefore the markets could go down again. So keep a watch on the crude oil, but because abhi right now it's below 60, the long term is a little weak right now. Medium term has become weak, but as long as it doesn't go above 60 and start consolidating above the 20 EMA, so till that time we're okay. And if you look at the short term trend, the daily trend of crude oil also, so that is consolidating between RSI 40 and 60. So which is, it's sideways, which is good for us. So as long as it's sideways, that's still okay for the markets. But if it turns bullish, it's a problem. Similarly, if you look at the USD INR, long term, medium term are still bullish. The short term is consolidating. If it goes say below RSI 40 in the short term, and यहाँ से weekly भी RSI 60 के नीचे जाता है, that's when the markets will start jumping. Okay, as long as it doesn't go above 60, because then everything will be in sync again, and then you have to be cautious. So overall, if you see globally markets, it's either bullish or it's neutral, but not bearish. And if you look at the commodities also, are in the neutral zone, and not bearish, and maybe not bullish also right now, but it doesn't matter. इसका क्या मतलब है कि bearish होगा ना, then it's better not to take long positions, because then you will struggle a lot and it will take a lot of time, and you could keep hitting your stop losses. But if it's neutral, it's still okay for us, even if it's not bullish. तो हमने देखा कि globally
यूएस मार्केट स्पेशली इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, बुलिश जोन पे है। और वैसे ही एशियन मार्केट्स भी आप देखें तो उसमें अब मोमेंटम धीरे धीरे आ रहा है एंड दे आर गेटिंग इनटू अ बुलिश स्टांस। अगर कमोडिटीज़ देखें तो गोल्ड, सिल्वर भी धीरे धीरे बुलिश जोन में आ रहे हैं और कंसोलिडेट कर रहे हैं। क्रूड ऑयल इज ऑल्सो कंसोलिडेटिंग एंड एज लॉन्ग एज क्रूड ऑयल doesn't turn bullish, we are good, because the moment it does that, the markets will start turning down. As it is, it's at a high level, इसलिए वो consolidate कर रहा है, पर अगर और ऊपर गया तो फिर तो वो definitely जल्दी नीचे जाएंगी। पर अगर यहाँ से वो कंसोलिडेट किया और धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गया, फॉर वट एवर थिंग दैट हैपन्स, वेदर इट्स द न्यूज़ ऑफ द वॉर, ईरान का कुछ अगर कोई गुड न्यूज़ आती है तो इमीडिएटली क्रूड ऑयल विल फॉल एंड द मार्केट्स विल जंप अप बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन अ बुलिश स्टैंस। यूएसडी आईएनआर देखें तो दैट इज़ एट अ न्यूट्रल स्टैंस। लॉन्ग टर्म और वीकली तो उसका बुलिश है, बट शॉर्ट टर्म में अभी वो कंसोलिडेट कर रहा है। अगर यहाँ से ये भी ऊपर चला गया देन इट्स नॉट सेफ फॉर द मार्केट्स, बट अगर ये कंट्रोल में रहा एंड स्टार्ट्स डिपिंग डाउन देन देयर इज नथिंग स्टॉपिंग द मार्केट्स। तो ओवरऑल ग्लोबली थिंग्स आर ओके, मतलब देर इज आइदर देर न्यूट्रल और देर बुलिश, देर इज नथिंग बेरिश अबाउट एनीथिंग। अब हम इंडियन मार्केट देखते हैं कि निफ्टी में क्या हो रहा है। जो हमने डिस्कस किया था पिछली बार, उसकी वॉल्यूम प्रोफाइल और उसका उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या वो इम्पैक्ट हो रहा है, लेट्स सी दैट। और कितना इम्पैक्ट हुआ है, क्या ये यहाँ से टर्न करने वाला है। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, is that getting ready for an upside now or is going to further go down? अब हम इंडियन मार्केट देखते हैं तो ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। तो ये मंथली चार्ट पे अभी तक कंसोलिडेट कर रहा है, इवन दो इट फॉर्म्ड अ स्ट्रांगली बुलिश कैंडल लास्ट मंथ इन जुलाई। अभी ये थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, बट RSI इज बिटवीन 40 and 60, तो इट्स साइड वेज फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। वीकली आप देखें निफ्टी 50 का तो वो भी जैसे कंसोलिडेट ही कर रहा है बिटवीन 40 and 60। एंड इफ़ यू लुक एट द डेली चार्ट, इट इज़ ऑल्सो बिटवीन 40 and 60 एंड इट फॉर्म्ड अ स्ट्रांगली बेरिश कैंडल और ये नीचे की तरफ ही चल रहा है। एंड दिस आई एम रिकॉर्डिंग व्हाइल द मार्केट इज़ ऑन। एंड लुक एट दिस कैंडल, ये जो आज की कैंडल है विच इज़ ऑन 17th August। तो ये इसका क्या मतलब है, अगर आप मेरा मास्टर क्लास सीरीज़ देखें, मैंने एक्सप्लेन किया है कैंडल्स कैसे होती हैं, कि इसका ये मतलब है कि प्राइस नीचे तक आया था बट देन द बुल्स पुश्ड इट बैक अप और ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर रहा है। सो विच सेज कि इतनी जब डाउनवर्ड चल रहा था, दिस इज़ अ गुड साइन कि मे बी इट कुड स्टॉप फ्रॉम हियर एंड देन इफ प्राइस एक्शन कन्फर्म्स इट कुड इवन गो हायर फ्रॉम हियर इन द डेली चार्ट विच इज़ द शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऑफ निफ्टी। मैक्सिमाइज करता हूँ तो ये देखिए आप, ये 24 जुलाई को 23,600 से इसने बॉटम टच किया और फिर स्ट्रॉन्गली बुलिश कैंडल बना के ये ऊपर गया और ये 3 अगस्त को इसने 24,770 के अराउंड क्लोजिंग दी। सो इट टुक हाउ मेनी डेज, 1 2 3 4 5 6 डेज में इट crossed 1,000 points in Nifty. Now, when it's coming down, it's been how many days? Count the candles. ये daily chart है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 days हो गए हैं and still it's not really कि ये बहुत नीचे गिरा हो। Yes, sideways consolidate कर रहा है but still in a bullish zone। ये कैसे पता चल रहा है? इसीलिए कि 10 डेज में जहाँ इतनी जल्दी ऊपर गया था और नीचे आते टाइम धीरे धीरे इट्स ड्रिफ्टिंग डाउन। और इफ़ यू लुक एट द फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऑल्सो टिल नाउ, इट्स ओनली टिल 38%, 24,300 के अराउंड इसने अभी भी इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है। सो ये मतलब 38% तक नीचे गया है इन 10 डेज वर्सेस इट वेंट अप ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स। सो दिस इज़ हाउ यू रीड चार्ट्स। ये नहीं है कि बस ये
बुलिश बेरिश हो गया, स्ट्रांगली बेरिश हो रहा है, अब नीचे ही जाई जा रहा है। लुक एट इट ना, ये कैसे ऊपर गया इतनी फास्ट और नीचे कैसे धीरे धीरे आ रहा है, विच इज़ ऑलवेज अ वेरी बुलिश साइन। और हमने पिछले वीडियो में क्या बात की थी कि ये जो जोन है जहाँ पे ये निफ्टी ऊपर गया था, यहाँ पे अराउंड 24,650 पे वो थोड़ा रेजिस्टेंस ले रहा है, और वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, एंड दिस कुड बी accumulation और डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दिस हैज़ प्रूव दैट यहाँ से इट वाज डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए वो नीचे की तरफ ही गया है, जो हमने बात की थी पिछले वीडियो में। और लुक एट द कैंडल इट्स मेकिंग नाउ, विच आई ऑल्सो टोल्ड यू, ये कहाँ ऐसे नीचे आया था ऑलमोस्ट टिल 24,200, और यहाँ से फिर इसने वापस ऊपर को बुल्स ने इसको टर्न किया है। सो इट्स फॉर्मिंग अ हैमर कैंडल, अगर जो समझते हैं। वैसे यू डोंट नीड टू इवन नो ऑल दीज नेम्स एंड ऑल, बट जस्ट फॉर पीपल हु अंडरस्टैंड व्हाट इज अ हैमर, विच इज़ अ गुड थिंग, बट जस्ट फॉर अ प्राइस थिंग, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि ये नीचे प्राइस गया और यहाँ से बुल्स ने इसको ऊपर किया, दैट itself is good. Understand how price moves to form a candle, the way I've explained in the masterclass series, and you will understand. You don't need to know what kind of candlestick pattern it is then. That's not important at all. So price structure will tell you everything. So अभी तो निफ्टी में, even though the long term medium term are consolidating, it's not bearish, मतलब वो 40-60 के बीच में consolidate कर रहा है, और जो bullish है वो short term chart is showing that it's still bullish despite it consolidating and coming down, and despite making strongly bearish candles also till 61%, in fact 24,040 के around, it's the 61.8%, तब तक भी अगर नीचे आए then also it's a bullish scenario. So if it turns from here, very good, that अब ये bullish तो था ही, and in the short term trend यहाँ से turn कर रहा है, so I can look at buying it. Similarly अब ये 38% पे भी support ले सकता है जहाँ अभी है, यहाँ से भी अगर turn करे then itself कि यहाँ से अब ये वापस ऊपर जा सकता है। कहाँ तक ऊपर जा सकता है? तो इसका जो पहला मतलब टारगेट जब ये टर्न करे तो अराउंड 24,940 950 के बीच में है, एंड अगर ये भी क्रॉस कर जाए देन इट कुड इवन गो 25,000 कुड टच और इवन गो हायर। तो आपको अब समझ आया है कि इट्स नॉट looking at things in isolation, but even when it shows a bearish sign, still how something is still bullish. और अगर आपको और इसका explanation चाहिए and you want me to elaborate with more examples, then put it in the comments, and मैं comments में देखकर फिर मैं I'll make a video on that, so that you understand कि how, what we mean that despite the market dipping, still it's a bullish stance. तो बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो वो भी लॉन्ग टर्म चार्ट इसका RSI 60 के बीच में है, even though it's 21 EMA के ऊपर, so it's consolidating. Similarly, if you look at the weekly chart of Nifty Bank, the medium term, वो भी consolidate कर रहा है, जैसे इसने strongly bullish बना के फिर ये अप डाउन वहीं पे consolidate कर रहा है between RSI 40 and 60. और अगर आप शॉर्ट टर्म चार्ट इसका देखें तो सेम थिंग इज़ हैपनिंग हियर ऑल्सो, लाइक इन निफ्टी। बैंकिंग सेक्टर द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर, जो दिखाता है कि इकोनॉमी इज स्ट्रॉन्ग, अगर वो उसका साथ देता है तो फिर निफ्टी कैन नॉट बी स्टॉप्ड। तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट आप देखिए, इट्स जस्ट लाइक निफ्टी ओनली, इवन दो इट्स बिटवीन 40 and 60, बट लुक विद इन दैट ऑल्सो द प्राइस स्ट्रक्चर कैसे समझ आता है कि हाउ यू कैन ट्रेड थिंग्स। Of course, the best scenarios अगर सभी RSI 60 के ऊपर हो, then very low probability that you could go wrong, because Nifty is strong, the sectors are strong, but इसमें भी ट्रेड होता है। देखिए अब जैसे ये 56,000 का लो इसने 24 जुलाई को बनाया, एंड 58,247 का हाई इसने बनाया ऑन 3 अगस्त। सो अगेन 1 2 3 4 5 6 डेज में, और अभी ये 10 डेज में it's slowly drifting down just like Nifty, but it's still in a bullish scenario, just like the way I explained in Nifty. और ये आज का कैंडल जैसे 17 अगस्त का आप देखिए, यहाँ अगेन जैसे इसने अच्छा प्राइस वो कॉन्फर्मेशन, मतलब ये अभी चल रहा है, ऑनगोइंग मार्केट है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये जैसे नीचे का इसने लो बना के, और अभी इट्स मेकिंग अ बुलिश कैंडल फ्रॉम हेयर,
सो विच इज़ अ गुड साइन। अगर ये यहाँ से फिर और अगर सस्टेन करता है देन यू नो यू आर गोइंग अप। एंड ये जैसे यहाँ से गया और ये ऊपर तक 3 अगस्त को जो बैंक निफ्टी गया था 58,247, RSI 60 के पास था। इसके और ऊपर चला जाता तो फिर देयर वाज नथिंग स्टॉपिंग इट, फिर तो ये और ऊपर जाके सपोर्ट लेके फिर टर्न करता तो इट वाज इवन बेटर। पर इसने वही RSI 60 को रिस्पेक्ट किया डेली चार्ट पे भी, और इसने वहाँ पे अब कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ से अगर ये 60 ब्रेक हो गया फिर तो ये नथिंग स्टॉपिंग द बैंक निफ्टी ऑल्सो देन कुड गो अप क्वाइट हाई। और बैंक निफ्टी भी आप देखें अभी जो ये कंसोलिडेट कर रहा है RSI 60 के नीचे और यहाँ से, तो इट्स स्टिल अराउंड 38.2% के अराउंड है, विच इज़ अ कैन बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इफ द मार्केट टर्न्स फ्रॉम हियर। इट्स ऑलरेडी फॉर्मिंग कैंडल्स लाइक दैट। और पर ये जाब अगर नीचे भी जा सकता है टिल 56,900 870 इट्स द 61.8% जोन। टिल हियर ऑल्सो इट्स ओके। सो दैट यू नो ना कहाँ तक नीचे जाए तब भी मैं बुलिश ही हूँ। इसका ये नहीं मतलब अब मैं बेरिश पोजिशंस लूँगा अभी, बिकॉज योर ओवरऑल शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज स्टिल बुलिश। So that's when, if you can get the direction of the market right, half your job is done. फिर तो इट्स जस्ट एग्जीक्यूशन, गेटिंग द थिंग्स राइट। कितना बफर रखना है, एंट्री कहाँ लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, प्रॉफिट कहाँ लेना है। बट डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट इफ द डायरेक्शन इज़ रॉन्ग देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम लूजिंग इन दैट ट्रेड। तो ऐसे ही अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखें तो अगर मार्केट यहाँ से टर्न कर जाए एंड इट टेक सपोर्ट ऑन 38%, देन योर फर्स्ट टारगेट comes to 58,400 450 के around, and if that crosses you could even go up to 59,200। और अगर everything goes well then it can even cross 59,800 and go up to almost 60,000। but of course you'll keep following and trailing your stop losses so that you don't know where the price will go, so you trail it accordingly। कैसे ट्रेल करते हैं जब आप मोमेंटम आप ट्रेड में हो तो आप कमेंट्स में डालिए एंड आई विल एक्सप्लेन दैट आल्सो। इफ़ यू डोंट पुट इन द कमेंट्स आई अज्यूम दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड आई डोंट नीड टू देन बॉदर टू एक्सप्लेन ऑल दैट। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने देखा वीकली और मंथली अभी कंसोलिडेट कर रहा है, एंड डेली भी कंसोलिडेट कर रहा है और थोड़ा बहुत डिप दे रहा है। बट डेली में शॉर्ट टर्म ट्रेंड डिस्पाइट ऑल दिस इज स्टिल बुलिश। मार्केट यहाँ से टर्न करेगा तो easily what are the kind of levels it can cross is what we have discussed। ये कल भी हो सकता है, ये कुछ दिन और भी कंसोलिडेट करके टर्न कर सकता है, बट द वे द मार्केट इज गोइंग इट शोज दैट इट इज बुलिश। और बैंक निफ्टी तो आज का अगर वो देखें आप कैंडल तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो हमने ये भी जाना कि निफ्टी अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी में ही ट्रेड करना है। सो इट इज़ न्यूट्रल, इट मे नॉट बी बुलिश बट इट इज़ न्यूट्रल, इट्स नॉट बेरिश। और अगर वो न्यूट्रल स्टांस में चल रहा है, इफ़ यू डोंट वांट टू ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी, इट्स एब्सोल्युटली फाइन एंड मच बेटर एक्चुअली। बट बिकॉज इट्स न्यूट्रल यू कैन ऑलवेज लुक एट द स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स एंड द स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स इन दोज सेक्टर्स। और हमने पिछले से पिछले वीडियो में ये भी बात की थी कि कौन से स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं और उनमें कैसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स देखते हैं। तो क्या वो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स और जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की हमने बात की थी क्या उन्होंने परफॉर्म किया? वी स्पोक अबाउट जिसका लॉन्ग टर्म चार्ट आप देखें, मंथली चार्ट इज बुलिश कैंडल्स बन रही है, RSI इज अबव 60, सो इट्स स्टिल इंटैक्ट। सिमिलरली वीकली चार्ट आप देखें तो उसमें भी बुलिश कैंडल्स बन रही है, यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है बट RSI इज अबव 60, सो मीडियम टर्म ट्रेंड ऑफ निफ्टी ऑटो इज ऑल्सो गुड। तो ये आप देखिए, अगर आपने इसको जब हम बात कर रहे थे निफ्टी ऑटो स्ट्रॉन्ग एंड उसके स्टॉक्स देखिए, तो TVS मोटर अगर आपने लिया होता विच ऑल्सो वी स्पोक अबाउट एज अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक विद इन द सेक्टर बिकॉज का मंथली वीकली वॉज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। तो आप देखिए कि ये जब यहाँ से 20 EMA से ये टर्न मारा इसने with a big volume, you knew that this is the stock to take। आप मेरा स्विंग सीरीज़ आपने अगर देखा है उसमें क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप ये स्टॉक्स ऐसे ट्रेड कर सकते हैं, नॉट जस्ट स्टॉक्स इवन इंडिसेस
how you can do a swing trading on it. तो दिस शोज यहाँ से आप लिए, जैसे आपने स्विंग किया और ये ऑलमोस्ट पोजिशनल बन रहा है कि ये यहाँ पे आपने लिया और पहला टारगेट आपका 3950 के अराउंड था, वो उसने दूसरे ही कैंडल में अचीव कर दिया. उसके बाद 1.618 4200 का कैंडल ऑल्सो इट अचीव्ड एंड उसके भी ऊपर चला गया. एंड नाउ इट्स कंसोलिडेटिंग अ लिटिल हियर. बट इवन इफ यू लुक एट इट, जो नीचे आ रहा है तो बहुत कम नीचे आ रहा है, इवन दो इट्स फॉर्मिंग बेरिश कैंडल्स इन द डेली चार्ट. RSI is above 60, so as long as RSI is above 60, it's a good sign. If it turns from here, you know there's a time that you could look at buying again, seeing the volume and everything as per the swing trading series. Watch those videos and you will understand. I'm not allowed to talk much as per the SEBI rules about stocks, but this is just for education, just for you to understand. जब sector strong होता है and Nifty is not bearish, even if it's in a neutral stance, this is what happens if you pick up stocks which are also good within those strong sectors. और यहाँ से अब ये टर्न करा तो दिस इज अ गुड साइन ना फॉर यू. वो जैसे आइडियल सिनारियो था टीवीएस मोटर का, सब कुछ अब था, योर मंथली, वीकली, एंड देन यूर ट्रेडिंग ऑन डेली, सो दैट मेक्स द प्रोबेबिलिटी इवन स्ट्रॉन्गर. वाइल राइट नाउ लेट्स लुक एट अनदर स्टॉक विद इन दैट. So it's not necessary. Of course, the best scenarios, if you have limited budgets, then you look at the best stocks within that. But look at this one. जब हमने इसकी बात की थी, it had formed a strongly bullish candle and it was slowly, popping its neck out of on the RSI also, और 60 के ऊपर धीरे धीरे जा रहा था from a long term thing. Weekly chart was that time, even though it formed a strongly bullish candle, but it was in a range 40-60 के बीच में ही घूम रहा था वो. इफ़ यू लुक एट द डेली, जब ये ऊपर गया था, फिर ये इनफैक्ट 20 EMA के नीचे भी चला गया, बट इट टुक सपोर्ट एट 61%, और यहाँ से इट टर्नड अप, went up above 20 EMA also, and look at it the way it's gone up still. But just see the difference. अब वो कहाँ 1.618 के भी ऊपर चला गया जो TVS मोटर्स था. क्यों? क्योंकि उसका मंथली एंड वीकली वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. While here, even though your weekly is consolidating within 40-60, but still, it achieved its target of 1, which was 176.7 के around. And अब वहाँ पे ये थोड़ा consolidate कर रहा है. And again, this could give you another chance, क्योंकि ये आ रहा है 20 EMA के पास, और यहाँ से अब ये अगर turn कर रहा है with a good volume, then you could look at this again. So that's how swing trading really works. हमने पिछले से पिछले वीडियो में निफ्टी फार्मा की भी बात की थी, उसका भी आप देखिए. द लॉन्ग टर्म चार्ट, मंथली चार्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इज फॉर्मिंग वेरी बुलिश कैंडल्स. RSI is above 60. Weekly chart, if you see, again, RSI is above 60. It's forming bullish candles. यहाँ पे अभी थोड़ा consolidate कर रहा है, but RSI above 60, so no problem at all. It's consolidating a little because look at the way it's gone up also. It needs to rest, consolidate a little. Similarly, आप डेली इसका देखेंगे तो डेली भी जैसे ये द वे इट शॉट अप निफ्टी फार्मा सेक्टर, अब आया है, ये अब नीचे आ रहा है थोड़ा सा बेरिश करके. इनफैक्ट RSI 60 को भी ब्रेक कर दिया है, बट इट्स एट 20 में. तो वो अगर इसको ब्रेक करता है देन इट कुड टेक मोर टाइम टू कंसोलिडेट. बट अगर यहीं से टर्न करता है देन अगेन यू कुड लुक एट स्टॉक्स विद इन दिस. जैसे निफ्टी फार्मा में हमने स्टॉक्स की बात की थी, लॉरस लैब्स की भी बात की थी, और लुक एट इट, उसका मंथली चार्ट इज सो स्ट्रॉन्ग. लुक एट द काइंड ऑफ बुलिश कैंडल्स इज मेकिंग. द वीकली चार्ट is also so strong with such bullish candles. RSI is above 60. Now it's consolidating a little when this red candle was formed, but RSI above 60, so no problem yet. And daily chart आप देखिए, let me just maximize. 20 EMA पे support लिया, turned up. You look at the volume, but यहाँ 61.8% resistance है, so beware of that. तो वहीं पे उसने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, आपको मे बी डराया भी इस कैंडल से. एंड देन व्हेन इट क्रॉस्ड अबव द 61.8% एंड क्लोज देयर, देन देयर वाज नथिंग स्टॉपिंग इट एंड इट स्ट्रेट अवे वेंट अप टू इट्स फर्स्ट टारगेट जो 1666 था. द सेकंड टारगेट 1793, उसके भी ऊपर चला गया. एंड नाउ इट्स कंसोलिडेटिंग
छोटी छोटी कैंडल बना के, एंड देन इट मेड अ बिग स्ट्रांगली बेरिश कैंडल. बट प्राइस स्ट्रक्चर देखिए, 20 EMA के ऊपर अभी है. इट कुड टेक सपोर्ट हियर. इट्स ऑलरेडी फॉर्मिंग अ ग्रीन कैंडल. लेट्स सी हाउ इट गोज इफ इट फॉलोज थ्रू. सिमिलरली RSI 60 डबली कन्फर्म्स. उसका जो डेली का RSI 60 है, ये वहाँ भी हो सकता है सपोर्ट ले ले. और ये सी इट्स मैचिंग विद दिस ना, जैसे प्राइस स्ट्रक्चर RSI इज लाइक अ डबल कॉन्फर्मेशन फॉर यू. और यहाँ से अगर ये टर्न कर रहा है, देन यू नो दिस इज अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू get into the trade for those who missed it. Despite Nifty dipping and consolidating, the strong sectors have really performed well. और उनके जो स्टॉक्स थे, उन्होंने अपने टारगेट सारे अचीव कर लिए. तो दिस शोज दैट यू नो इफ ओवरऑल ग्लोबली द मार्केट is bullish to neutral, or even Nifty is bullish to neutral, as long as they are not bearish, we can trade in the strong sectors, if not in the indices as of now. तो इन पे अब आप ध्यान रखें, इन सेक्टर्स पे जो स्ट्रांग हैं, इनके स्टॉक्स पे, क्योंकि ये सबसे पहले टर्न मारेंगे जैसे ही निफ्टी स्टार्ट्स टर्निंग अप. सो कीप अ वॉच. कुछ कमेंट्स होगा, प्लीज़ डालिए. एनीथिंग यू वांट मी टू टॉक अबाउट. तो अब आप खुद भी एनालिसिस करने के लिए रेडी हो गए हैं. नेक्स्ट वीक का एनालिसिस आई वुड लाइक कि आप करें खुद, एंड देन सी जब हम मिलते हैं कि हाउ मच इज मैचिंग, बिकॉज दैट विल हेल्प यू लर्न एंड टू सी इफ यू गोइंग द राइट डायरेक्शन. क्योंकि आपकी डायरेक्शन राइट हो गई तो लाइक आई ऑलवेज से, योर मोर देन हाफ द जॉब इज डन. Execution has to be strong, and you have to be disciplined and focused and follow a good trading system with proper risk management. Analysis के लिए simple है, जो आप भी करना. Global markets देखना, especially the US markets, the commodities, gold, silver, crude. Crude is very important because crude से काफ़ी dependent होती है markets, because if that goes up, then everything starts affecting the economy, the prices go up, and therefore the markets start turning down. So keep a watch on the crude. USD INR is important, which would also be a function of how crude is performing, how the economy is doing. So USD INR should be in control. And then you will look at the Indian markets. Nifty, Bank Nifty, how they're performing. Bank Nifty, like I have told you, always has to support if Nifty has to go up. Is that also strong enough? Keep a watch on the strong sectors we have identified. और नए नए स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स भी निकल के आ रहे हैं, उनको भी आप देखिए, उनमें क्या स्टॉक्स हैं. यू लुक एट द स्विंग ट्रेडिंग सीरीज इन द मास्टर क्लास सीरीज, एंड यू विल लर्न हाउ टू लुक एट द प्राइस कैंडल स्ट्रक्चर्स, प्राइस एक्शन कैसे चलता है. And you yourself can trade. It becomes very easy once you learn it yourself. That's really what I want. कि आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहें. You yourself are able to analyze the market and then trade accordingly. आपको स्विंग ट्रेडिंग सीरीज आप देखिए, आप मास्टर क्लास सीरीज देखिए, जो बेसिक आपको उससे स्टॉक मार्केट के बारे में पता चल जाएगा. एंड देन स्लोली डू सम पेपर ट्रेडिंग, स्लोली स्टार्ट ट्रेडिंग. धीरे धीरे करते करते उसको बढ़ाइए. एज यू गेट कॉन्फिडेंस एंड एज यू आर डूइंग better and better, and with a higher probability of success in trading, you yourself will get more confident. But you have to be very disciplined in your whole approach and focused. Do a lot of learning, and a lot of back testing to give you the confidence. Keep a watch on these sectors I spoke about, on the stocks in those sectors, and especially for Nifty and Bank Nifty, as they could turn any time now. So we have to be ready. कुछ comments होंगे तो आप ज़रूर डालिए इसमें, and I will respond to them. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much. Bye.